بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری باقی کہانیوں کی طرح آج کی کہانی بھی پسند آئے گی۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ ایک مرتبہ جبکہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ ابو کام پر گئے تو لو لگ گئی اور بیمار ہو گئے۔ اتنے بیمار پڑے کہ نوکری کو ہی خیر بات کہنا پڑ گیا۔ جب ٹھیک ہوئے تو پھر نوکری نہ ملی، 2-4 عارضی قسم کی نوکریاں کی اور چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کوئی ڈھنگ کی ملازمت نہ پا سکے، اکثر بے روزگار رہنے لگے۔ ان دنوں ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ 6 ماہ کا کرایہ چڑھ گیا اور مالک مکان گھر خالی کرانے کے در پہ ہو گیا۔ والد روزانہ روزگار کی تلاش میں صبح گھر سے نکل جاتے اور شام کو خالی ہاتھ لوٹ آتے۔ اس روز بھی وہ گھر پر نہ تھے جب شاکر نے کنڈی کھٹکھٹائی۔ والدہ نے آواز پہچان کر دروازہ کھول دیا اور کہا کہ انور گھر پر نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے، صبح جب وہ گھر سے جا رہے تھے میں اوپر سے ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں تو آپ ہی کو کہنے آیا ہوں کہ بہن جی کہ یہ آخری تنبیہ ہے، اسی ماہ کی 10 تاریخ کو پورے 6 ماہ کا کرایہ ادا کر دینا، ورنہ مکان خالی میں خود کرا لوں گا اور آپ کا سامان گلی میں رکھ دوں گا، پھر بے شک جہاں مرضی سر چھپانا، مگر مجھے دوش مت دینا۔ میں نے تو اسی سبب سے اتنی مہلت دے دی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی جوان ہے، اس کو لے کر کہاں مارے پھرو گے۔ یہ سن کر میں ذرا سا اس کے سامنے آ گئی اور امی کے بدلے جواب دیا، چچا آپ کی بہت مہربانی ہے جو ہمارا اتنا خیال کیا ہے، جہاں اتنے دن صبر کیا ہے تھوڑا سا اور کر لیں، ہم جلد ہی آپ کو کرایہ دے دیں گے۔ میں روز دعائیں کرتی ہوں کہ ابا جان کی نوکری ہو جائے۔ مجھے دیکھ کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بولا اچھا چند دن اور انتظار کر لیتا ہوں، لیکن اب کے کرایہ نہ دیا تو یاد رکھنا کہ مکان خالی کرنا ہوگا۔ اللہ کی کرنی کہ انہی دنوں شاکر کی بیوی بیمار پڑ گئی اور وہ کام کاج سے رہ گئی۔ مالک مکان گھر کی بالائی منزل پر رہتے تھے اور ہمیں نچلی منزل کرائے پر دے رکھی تھی۔ جب والدہ کو علم ہوا کہ بوا شمیم بیمار پڑی ہیں، وہ عیادت کو اوپر کی منزل چلی گئیں۔ شاکر کی بیوی کا نام شمیم بی بی تھا اور ہم ان کو بوا شمیم کہا کرتے تھے۔ واقعی وہ بہت بیمار تھی، بہت کمزور ہو گئی تھی اور ان سے ہلا بھی نہیں جاتا تھا۔ والدہ کو بہت افسوس ہوا کہ 6 ماہ قبل تو اچھی خاصی تھی، یہ انہیں کیا ہوا کہ گھل گھل کر ایسی ہو گئی۔ انہوں نے شاکر کی بیگم سے کہا، بوا تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، میں آج دوپہر کو آؤں گی اور پانی گرم کر کے تمہارا ہاتھ منہ دھلا دوں گی، کنگھا بھی لگتا ہے عرصے سے نہیں کیا، بال بھی سلجھا جایا کروں گی، تمہاری آدھی بیماری کم ہو جائے گی۔ وہ بیچاری لاچاری سے کہنے لگی، کوئی میکے میں ہے نہ سسرال میں جو آ کر میری دیکھ بھال کرے۔ شاکر میاں صبح شام ہوٹل سے کھانا کھا رہے ہیں، مجھے بھی پرہیزی کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہیں ہے، کیسے بھلی چنگی ہو جاؤں۔ ارے تو کیا ہم مر گئے ہیں؟ ہمیں بھائی شاکر نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں روز آ کر تمہارا کھانا بنا دیا کروں گی، نہیں تو یہ آ جائے گی لائبہ آخر یہ کس لیے ہے، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اس دن سے میں اور امی روز ہی مالک مکان کے گھر جانے لگے۔ جو ہی وہ اپنے گھر سے نکل کر کام کو چلے جاتے، ہم ماں بیٹیاں ان کے گھر پہنچ جاتے۔ امی کھانا بناتی تھی اور میں ان کے گھر کی صفائی اور دیگر کام کر دیتی۔ اب شاکر صاحب کو چھم سے راضی نظر آنے لگے، وہ مکان کے کرائے کا تقاضا کرنے بھی نہیں آئے۔ چند دن گزرے کہ ان کی بیگم اسپتال چلی گئیں، انہیں ڈاکٹروں نے داخل کر لیا کہ ان کا علاج گھر پر ممکن نہ تھا۔ کچھ دن ہم اسی انتظار میں رہے کہ بوا شمیم آ جائیں تو ان کے گھر عیادت کو جائیں گے۔ 1 ماہ گزر گیا، وہ نہ آئیں، لیکن ان کے مرنے کی خبر آ گئی۔ بہت افسوس ہوا، اللہ کی مرضی، موت و حیات کے معاملے میں کوئی کیا کر سکتا ہے۔ شاکر سے میرے والدین نے تعزیت اور ہمدردی کی تو وہ روحانسا ہو کر بولے، مرحومہ کے بعد گھر خالی خالی ہو گیا ہے، سب جمع پونجی ان کی بیماری پر لگا دی، مگر وہ ہسپتال سے ہی قبرستان چلی گئیں۔ والدہ نے کہا، بھائی صاحب آپ ہمیں اپنا سمجھیں، روز کا کھانا ہم آپ کو بنا دیا کریں گے اور گھر کی صفائی وغیرہ لائبہ کر دیا کرے گی۔ شاکر نے چابی میری والدہ کو دے دی کہ بہن آپ کو کچھ دن تکلیف دوں گا، پھر کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا۔ کہنا تو نہیں چاہیے کہ موت زندگی کے ساتھ ہے، لیکن بوا کا مرنا گویا بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹنا تھا۔
कुछ अरसा शाकिर मियाँ बीवी के गम से इस कदर निढाल रहे कि हमसे मकान के किराए के लिए तकाजा करना भी भूल गए। शो में किस्मत के वालिद साहब को बावजूद तलाश बसियार की कोई माकूल मुलाजमत न मिली और हमारे घर की माली हालत और ज़्यादा दुगरगुं होती चली गई। थोड़ी सी मदद मेरे अब्बू के एक चचा साथ भाई मुनीर कर दिया करते थे, लेकिन वो कारोबारी शख्स थे, उन्हें अपने कारोबार से फुर्सत ना मिलती थी कि हमारे घर आएं। वालिद ही उनके पास जाया करते थे कि मुनीर भैया कहीं काम पर लगवा दो, लेकिन रोज़ी तो किस्मत से मिलती है, जब किस्मत साथ ना दे रही हो तो मौके भी नहीं मिलते। अब्बू के कज़न की माली इमदाद से बस एक वक्त की रोटी ही मुश्किल से मैसर आ जाती थी। मैं मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, अम्मा पास पड़ोस की लड़कियों को सुपारा पढ़ाने लगी ताकि उनके छोटे तीनों बच्चे स्कूल जा सकें। जब हालात मुसलसल ऐसे चल रहे हों तो कोई क्यों ना अपनी ज़िंदगी से आजिज़ आने लगे। वालिद भी नाउमीदी से बीमार पड़ गए और इन्होंने नौकरी की जस्तजू में घर से निकलना तर्क कर दिया कि अपनी अना को रोज़ ठेस पहुंचाकर भी इनको गोरे मकसूद हाथ ना आ सका। दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार अब कोई भी मुंह ना लगाता, बल्कि देखकर मुंह फेर लेते थे कि कहीं कर्ज मांगने को तो नहीं आ गए। मैं बदस्तूर शाकिर साहब के घर जाती, उनका खाना पकाती, किचन साफ करती, उनके घर की सफाई करती, हत्ता कि उनके मैले कपड़े भी धो आती कि हम उनके कर्जदार थे। डर था किराया अभी तक नहीं अदा कर सके, किसी दिन निकाल भाई न करें। एक रोज़ मैं उनके घर के काम काज में मसरूफ़ थी कि वो आ गए। मैंने उनको देखा तो सहम गई। बोले, लाइबा बीबी परेशान मत हो, मैं कुछ ज़रूरी कागजात लेने आया था, वरना मुझे मालूम है तुम इस वक्त मेरे घर में आकर काम काज कर रही होती हो। मैं नहीं आया करता। बहरहाल इस बात का अपनी अम्मी से जिक्र मत करना, वरना उन्हें बुरा लगेगा। ये कहकर इन्होंने अपने कमरे की अलमारी से कुछ कागजात निकाले और चले गए। 2-4 दिन बाद वो फिर इसी तरह आ गए। कहा कि लाइबा, तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। मेरे घर को तुम्हारी जैसी एक सलीकामंद की ज़रूरत है। अगर मैं तुम्हारे वालिदैन से तुम्हारा हाथ मांग लूँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। तुम्हारी रज़ा को ज़रूरी समझता हूँ, इसी वजह से पहले तुमसे बात करना मुनासिब लगा। मैं खामोश रही, क्या कहती। जानती थी कि हम मजबूर हैं, इनका 9 माह से ज़्यादा का किराया देना है। पहले किराए के लिए तंग करते थे, अब जब कि बीवी फोत हो गई तो किराए का तकाजा भी छोड़ दिया था। अगर चाहते तो 1 मिनट में हमें निकाल कर बाहर कर सकते थे। उन दिनों मैं 17 बरस की थी और गुर्बत में फाके आ गए थे। तभी तरह तरह के खौफ दिल में जन्म लेने लगे। इसको टका सा जवाब देकर नाराज नहीं करना चाहती थी। जवाब के इसरार पर कहा कि आप मुझसे नहीं मेरे वालिदैन से बात कीजिए। इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती, वही देंगे। उधर माँ थी कि इस अमर पर खुश थी कि हम शाकिर के घर का काम काज कर आते हैं, तभी वो किराए का तकाजा नहीं कर रहा। वो मुझे रोज ताकीद करती, बेटी इसका अच्छे से काम कराया करो ताकि हमसे खुश रहें और किराए की वसूली के लिए तंग न करे, वरना हम कहाँ जाएंगे जो इसने मकान खाली करा लिया तो। एक रोज इसने दबे लफ्जों में मेरे वालिद से कहा, भाई साहब, मेरी बीवी वफात पा चुकी है और अब मेरे घर में एक औरत की जरूरत है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहिए। वालिद साहब ने जवाब दिया, अगर आप अपनी बेटी लाइबा का रिश्ता मुझे दे दें और मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर लें तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपको अपने कारोबार का इंचार्ज बना दूंगा और आपके बच्चे भी बेघर ना होंगे। आपको कहीं रोजगार तलाश करने की जरूरत ना रहेगी। वालिद साहब को यकीनन बुरा लगा होगा कि शाकिर उनसे उम्र में चंद बरस बड़ा ही होगा, लेकिन वो एक मजबूर इंसान थे। इन्होंने तहम्मुल से कहा कि मोहलत दें, अपनी बीवी से मशवरा कर लो। वालिदा को बताया तो वो रोने लगी कि कैसा इंसान है इस उम्र रसीदा को, क्या मेरी फूल जैसी बच्ची ही अपने लिए मुनासिब लगी है? क्या मकान के किराए की खातिर हम अपनी मासूम को इसके हाथ बेच दें? तो फिर क्या करें? अब्बा ने कहा, अब तो नाउमीदी ने मेरी ऐसी कमर तोड़ी है कि मैं मुस्तकिल बीमार रहने लगा हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ। वाकई अजीब सूरत हाल थी। हमारे पास रहने को मकान नहीं था और शाकिर किराए के बदले बेटी का रिश्ता मांग रहा था। अब्बा जान दीवार से टेक लगाए बेबसी की तस्वीर बने बैठे थे। मुझसे इनकी बेबसी देखी न जा रही थी। जी चाहा कहूँ कि अब्बा जान, मेरी फिक्र मत कीजिए, आप अपने कुंबे की फिक्र कीजिए। इस घर से निकाले गए तो उनको लेकर कहाँ जाएंगे? इज्जत इसी में है कि उम्र का फर्क ना देखिए, चाहे जमीन आसमान का फर्क ही क्यों ना हो। अब्बू उस रोज इसी फिक्र में गलता थे कि अचानक चचा मुनीर आ गए। बोले, तुम्हारे घर ऐसा सन्नाटा क्यों पड़ा हुआ है? खैर तो है? वालिद उनकी आवाज़ सुनकर ऐसे जी उठे जैसे मुर्दे में जान पड़ गई हो। यार, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। इस वक्त मुझे तुम्हारी अशद ज़रूरत थी। क्यों, क्या हुआ? क्या रकम दरकार है?
वो तो हर वक्त दरकार होती है, इस वक्त तो तुम्हारा मशवरा दरकार है। कहो हाजिर हूँ। वालिद ने मामला बताया तो इन्होंने कहा फौरन घर बदल लो और इसको हरगिज़ बेटी का रिश्ता ना दो। महज किराए की खातिर घर तो बदल लें, लेकिन जाएं कहाँ? चचा मुनीर बोले, मेरे घर का एक हिस्सा खाली पड़ा है, इसमें चल कर रहो। शाकिर का किराया कितना देना है बता दो, मैं दिए देता हूँ। वालिद ने किराए की रकम बताई और इन्होंने कहा कि कल रकम आकर दे जाऊंगा। मिनी ट्रक भी ले आऊंगा, मेरा अपना ही है, बार बरादरी के लिए है। सामान बांध कर तैयार रखना, कल ही ये मकान छोड़ देना। हमें क्या समझता है, इसके साथ हिसाब चुकता कर देंगे। वालिद साहब ने मुनीर अंकल की बात मान ली और अम्मी से कहा कि आज से सामान समेटना शुरू कर दो, कल हम ये मकान छोड़ रहे हैं। देखा आखिर अपने ही काम आते हैं। दूसरे रोज दोपहर को अंकल मुनीर आ गए, साथ 2 मजदूर भी थे। सारा सामान ट्रक पर रखवा दिया। इतने में मालिक मकान भी आ गया। वालिद साहब ने शाकिर को आवाज़ दी, मियाँ हमारी बात सुनकर ऊपर जाना। वो तो ट्रक पर सामान लदा देख ही चुका था, फौरन बैठक की तरफ आया। अंकल मुनीर ने इसको किराए की तमाम रकम थमा कर कहा, मियाँ कहा सुना माफ़ करना, हम इनको आज और अभी लिए जा रहे हैं। मकान का बंदोबस्त हो गया है। इनका उखड़ लहजा सुनकर शाकिर को चुप लग गई। मजीद एक लफ्ज़ मुंह से ना निकला। खामोशी से रकम ले ली और हम अंकल मुनीर की गाड़ी में लद कर उनके घर आ गए। वो इतने बड़े घर में अरसे से अकेले रह रहे थे। उनकी बीवी 2 बच्चों के साथ मैके मिलने गई तो वहाँ से तलाक मंगवा ली और वापस लौट कर ना आई। तब से बेचारे तन्हाई का अजाब काट रहे थे। हमारे आने से घर में रौनक हो गई, उनका दिल बहल गया और हमें भी सुकून मिल गया कि किराए के लिए कोई तंग करने नहीं आता। इनको खाने की तकलीफ थी। अम्मी से कहते थे, भाभी मैं तो मुसलसल बाजार का खाना खा खा कर बीमार पड़ गया हूँ। जब से आप आई हैं और घर का पकवान मिल रहा है, मैदे की तकलीफ भी कम हो रही है। खुदा करे आप उम्र भर मेरे साथ रहें। न जाने पहले मुझे क्यों ये ख्याल ना आया कि आप लोगों को यहाँ ले आऊं। इस शाकिर ने तो किराए के लिए आपका जीना हराम कर रखा था। मैं तो बहुत खुश थी कि 40 बरस के शाकिर से शादी को अपने वालिदैन की मजबूरियों का हल समझकर खुद अपनी खुशियों का गला घोंटने का सोच रही थी। अंकल मुनीर हमारे लिए फरिश्ता रहमत साबित हुए। कुछ दिन गुजरे। इन्होंने अम्मी से कहा, भाभी आप कब तक मेरे लिए खाने बनाती रहेंगी? बेहतर है कि मेरी शादी करवा दें। किससे? मेरी मासूम माँ ने सवाल किया। किसी से भी, खुद ही कोई मुनासिब रिश्ता ढूंढ ले, जिससे शादी कराएंगी मैं कर लूँगा। वालिदा बेखबर इनके लिए रिश्ते ढूंढने लगी थी। भला इस नई जगह एक 50 बरस के शख्स के लिए रिश्ता कहाँ से मिलता? अगर मेरे माँ बाप को खबर होती कि मुनीर मियाँ की नज़रें मुझ पर हैं तो वो कभी रहने यहाँ ना आते। इस 50 साल के बूढ़े से वो 40 साल का शाकिर क्या बुरा था? अगर रिहाइश के बदले अपने करीबी रिश्तेदार ने भी वही कहानी दोहरानी थी तो इसके साहिबा तले क्यों आ गए? मेरे वालिदैन परेशान थे कि क्या करें, लेकिन मैं समझदार हो चुकी थी। साफ अम्मी जान से कह दिया कि अगर गुर्बत दूर नहीं हो सकती तो इज्जत की जिंदगी गुजारने वाला रास्ता चुन लो, और वो यही रास्ता है। मेरा निकाह शाकिर से नहीं किया तो अब मुनीर साहब से कर दो। अब्बा का दूर का कज़न है, इससे निकाह तो जायज़ है, लेकिन वैसे ही इसके आसरे पर जीना जायज़ नहीं है। कब तक वो हमें खर्चा देंगे और हम बस इनका खाते ही जाएंगे। 1-2 नहीं, हम 6 अफराद हैं। जब इन्होंने निकाल बाहर किया तब ये धरती पनाह नहीं देगी। किसी और के दर पर पनाह ली तो और ज़्यादा जिल्लत की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। बूढ़े जवान को ना देखो, बस आप लोग मेरी और अपनी इज्जत को देखो। लोग बातें ही बनाएंगे, बातें बनाकर चुप हो जाएंगे। बस मुझे इज्जत से जीना है। वालिदैन ने मुनीर से कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी और हमारी लड़की की उम्र में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसने जवाब दिया कि इसमें बुरा क्या है, लेकिन बुरा तो तब है कि जब आप लोग यहाँ से निकलकर किसी तीसरे शख्स के घर जाकर पनाह लेंगे। वालिदा तो अब भी रो पीट रही थी, मगर वालिद ने फैसला कर लिया कि अब तीसरे घर नहीं जाना। मुनीर ही ठीक है, बहुत बड़ा कारोबार है इनका और दौलत भी काफ़ी है। अकेला आदमी आखिर ये सब दौलत, कारोबार, घर बार, माल और मता कहाँ जाएगा? मैंने जगह जगह भटकने पर एक उम्र रसीदा शख्स को तरजीह दी। मुनीर साहब ने एक मकान मेरे नाम लिख दिया, जो मैंने रहने के लिए अपने वालिदैन और छोटे बहन भाइयों के हवाले किया। मेरा निकाह मुनीर के साथ हो गया। मर्द भी तो सौदा करते हैं, तो मैंने भी अपने घर वालों की खातिर अपनी ज़िंदगी और अपनी खुशियों का सौदा कर लिया। तो कुछ गलत नहीं किया, कोई बुराई नहीं की, बल्कि निकाह को कबूल किया बाइज़्ज़त ज़िंदगी की खातिर। आज मुझे जैसी ज़िंदगी मिली है इसी बूढ़े शख्स की बदौलत मिली है। सच शुक्र करती हूँ कि मेरे बहन भाई पढ़ लिख गए हैं और फिर इनकी शादियाँ भी हो गईं। वालिदा मेरे साथ हैं क्योंकि वो बेवा हो चुकी हैं और मैं भी,
لیکن ہم در بدر نہیں ہیں۔ مجھ سے نکاح کے بعد منیر صاحب 10 سال جیتے رہے اور سب کچھ میرے ہی نام کر گئے۔ میرے بھائی نے ان کے کاروبار کو سنبھال لیا۔ ہم کسی کے محتاج نہیں۔ لوگ کہتے تھے بیچاری کو بوڑھا جیون ساتھی ملا، مگر مجھے میرے شوہر کے دم سے ہی عزت کے ساتھ ساتھ محفوظ چھت بھی ملی ہے، سکون کی زندگی بھی ملی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔